Thank you so much, everyone. I'm really, really grateful that आप लोग सब आए हैं. Media persons, all the personalities, all the cast and crew, and special thanks to Imtiaz. The last moment पे Imtiaz was there, and he has always been there. I have to tell you. So thank you, Imtiaz. गिरेंगे नहीं. Thank you, Ajaz, for coming. So all of you, everybody is important. Thank you so much क्योंकि ये बहुत मेहनत से ये फिल्म बनी है और honestly हम लोग यहाँ आज खड़े हैं. So हाँ, so unmute कर लेते हैं क्योंकि. Ladies and gentlemen, members of the media, it's now time for the unveiling of the box of the music of Once Upon a Time in Bihar. Released on 30th October, by the way. मैम आप ये बैलेंस कीजिए थोड़ा उस तरफ जाइए. Once Upon a Time in Bihar is based in year 2000, early 2000 in Bihar. There are some few real events which happened that time. So while I was working on some other story that time and making documentary, so I came across few very distinct, very unique things happening there just before the Nitish Kumar came in 2005. So I started writing, started researching, and finally was able to cast 3 guys, and then we shot it. It's basically a crime thriller based on the socio-political, economic condition which was prevailing in Bihar in those times. So this is how it has become Once Upon a Time. It's a story which is based on real events 15 years back. Thank you so much. Okay, I'm sorry, I have to, I missed one person who's the most important person जिसके कारण हम लोग आज यहाँ खड़े हैं. हमारी माँ जो है बैठी. तो आ जाइए ऊपर. आपके बिना हम लोग कुछ नहीं है और बहुत ही इनकम्प्लीट लग रहा था. हम सोच रहे थे स्टेज पे क्या मिस हो रहा है. So she is the strength behind us. जब हम लोग बिहार से निकले थे काम करने के तो मम्मी बोली अपना ड्रीम जो करना है करो हम तुम्हारे साथ हैं. And see today we are standing in front of you only because our mother was always with us. So that's all was the incomplete thing. Thank you. Hello, good afternoon. Thanks for coming in the middle of the day. The important thing for me to say over here is that I've seen Once Upon a Time in Bihar some time back in a big screen. I was among the very lucky few people who actually saw it. I saw it in Patna, and I was very amazed by a lot of things in this film. The most interesting thing about the film, I think, technically is the direction. And I was very impressed by Nitin, who I think before people become popular, their merit is somehow not recognized as much. But I think that in the days to come, people in the country and in the world will see his talent as a director. And I would say Neetu has produced this film, they have done it themselves. I think it's been like a cooperative movement, like the launch of Amul or something, where people have contributed different things from their houses and made this film. And all of those people, most of them are on stage right now.
And it's a matter of great, I want to really congratulate and thank all of them, many of them are not on stage, I'm sure, that they kind of aligned with the thought of Nitin and Neetu. And congratulations to you, Neetu, that you have taken this through. It has taken time. Good things sometimes are slow cooked, and I think this is one of those dishes. I really enjoyed the film. I was very happy to see for the first time a movie which was modern coming out of Bihar, and which is true to the language of Bihar, which is true to the ethics of Bihar. I have lived, Jamshedpur and Patna is where I have grown up. I've lived 8 years of my very impressionable years in Patna, and I was really amazed by the simplicity with which you told such a complicated story. And the actors, Kranti I knew because he's from Hindu College, and that was the connection. So I feel he's another very high potential actor. And I think that you do very well in the days to come. I think this movie is a great platform for you. I think, I was very impressed by your performance. I think people are also going to be. And I would like to say similar words for the other actors, Aarti and Deepa. And who are missing? Aarti. So, all the best to the entire team. And I would actually I will actually put my neck out to say that this is a very good film. And I think people should get out and watch this film in theatres for no other reason but because they'll be very happy to see it. You know, sometimes people don't make the journey to the theatre, but for this one they should. I think they'll be happy to. We were just discussing right here that Bihar is perhaps the most unpopular. It is supposed to be the most ganda place in India, you know. हर गंदगी वहाँ होती है, हर तरह की बुराई है वहाँ पे, पॉलिटिक्स पास करते हैं लोग अजीब से हैं, बट फिर भी सालों साल से अशोक से लेकर के आज मतलब नितिन तक बहुत सारे लोग यहाँ से क्यों पैदा होते हैं बिहार से? इतनी खराब सिचुएशन अगर है तो क्यों पैदा होता है? और फिर क्या कौन सी वो उम्मीद की किरण है जिसको लेने के लिए गांधी जी तक बिहार जाते हैं अपना आंदोलन शुरू करने से पहले? So Once Upon a Time in Bihar is a very, very relevant look at what Bihar is really about. And I'm very, very pleased that after some initial struggle that happens in movies like this movie is coming out. And I think I've already spoken a lot, but it's only because I really mean that people should watch this film. Thank you. Thank you so much. A lot of inspiring words. And after listening to you, Imtiaz sir, the only thing I can't wait is to see a little bit of the movie right here on screen. So may I request our cast, our producer, our director, and sir, may I request you please take your seats as we are all ready to unleash a little bit of Once Upon a Time. Yes. Many congratulations, Neetu and Nitin, for the launch, and to you also, Imtiaz. Imtiaz, बड़ा अच्छा लगा कि आप इस फिल्म को सपोर्ट करने आए, कोई विशेष कारण? नहीं, मैं बिहार से हूँ और फिर फिल्म देखी है, फिल्म बहुत अच्छी लगी। मेरे ख्याल से किसी भी फिल्म को प्रमोट करने का या उसका हिस्सा होने की लालच सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि फिल्म अच्छी है और ये प्रतिभाशाली नौजवान ये और भी अच्छी फिल्में बनाएंगे अपनी ज़िंदगी में, मगर शुरुआत बहुत अच्छी की है इन्होंने। सो just to push it forward, just to encourage more and more people to watch this film which I've seen and enjoyed. And I remember, although it's been a long time since I saw it,
दैट्स द रीज़न फॉर मी बीइंग हियर। क्या सर इस फिल्म में नाम लिया गया डायरेक्टली राज ठाकरे साहब का, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे ओके, सेंसर ने हटवा दिया वो ठीक है, लेकिन नहीं अब है ही नहीं तो अगर है ही नहीं तो उसके बारे में नहीं, ये ट्रेलर लेकिन ये थिएट्रिकल ऑल्सो अगर हम रियलिटी फिल्म बना रहे हैं तो कुछ रियल चीजें का नाम सब देखो, डोंट गेट इनटू कंट्रोवर्सी, देयर इज नो नेम, देयर इज नो रियल नेम दैट इज इन द फिल्म, सो दैट इज हाउ इट इज। तो कितने चेंजेस करने पड़े होंगे कि हाँ, जब सेंसर के उन्हें कुछ 4-5 जगह जैसे बहुत छोटी छोटी शब्द जैसे साला नहीं यूज़ कर सकते हैं, या राज ठाकरे का नाम था कोई, हाँ फिर वो हटा, कुछ और नाम थे वो हटाए गए, ये 2-3 छोटी मोटी चीज़ें थी। चीज़ ये है कि ये कोई इस पिक्चर पॉलिटिक्स पे बेस्ड है, बट इसका कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि हम किसी को, ये लोग किसी को बेहतर या बुरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कभी कभी फिल्म बनाते हैं और जो चीज़ें आप न्यूज़पेपर में देखते हैं उस तरह की चीज़ें उसमें डाल देते हो, बट आपको मालूम होता है कि आप उसको रिप्लेस करोगे। आपने बिहार को बहुत सालों से ऑब्जर्व किया, आप 2000 और अब तक में क्या चेंजेस पाते हैं? कुछ अंतर आया कि अभी भी वही हाल है? नहीं, काफ़ी अंतर है, बहुत बेहतर हालत है अभी। कुछ साल पहले तक और शायद बदलाव हो सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि और उसकी थोड़ी ज़रूरत है। इसमें आपने 4 भोजपुरी गाने डाले हैं, जबकि हिंदी फिल्म है, तो उसका क्या रियलिस्टिक सिनेमा बनाने के लिए कुछ इस तरह? हाँ बिल्कुल, बिहार की पृष्ठभूमि है। अब जैसे बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं पिछले कुछ सालों में भी, जिसमें अगर वो जिस जगह की कहानी है तो पंजाबी बेस की कहानी, तो पंजाबी गाने मिल ही जाएंगे, ठीक है। अभी एक इंग्लिश फिल्म आई तो उसमें मराठी फोक है, तो फिल्म जहाँ जिस पृष्ठभूमि की है वहाँ का कुछ ना कुछ डायलैक्ट, कुछ ना कुछ म्यूज़िक ज़रूरी है। तो नाम भी आपने एक तरह से वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई था, अब आपने वंस अपॉन अ टाइम नहीं, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई नहीं था, ऐसे 257 फिल्में और टीवी सीरीज हैं, 257। वो एक एनालिटिकल आप बता रहे हैं, लेकिन हाँ, लेकिन नहीं, वंस अपॉन अ टाइम इन अमेरिका है, वंस अपॉन अ टाइम इन मेक्सिको शायद है। आपको नहीं पता होगा, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई तो एक फिल्म है, लगान का नाम था वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया, उसका टैगलाइन था। उसी तरह वंस अपॉन अ टाइम इन मेक्सिको, अमेरिका, अफ्रीका, एनाटोलिया, पता नहीं कितने हैं, 257 है IMDb पे, मैंने चाहिए उसको मालूम था ये सवाल पूछा जाएगा। आप कितना चेंजेस देखते हैं, क्योंकि जब ये मैं एक्चुअली 8 साल में पटना में रहा हूँ, और तो अभी जो सेंट माइकल स्कूल के पीछे एक ना चीज़ थी जिसको हिल कहते थे, उसके ऊपर खड़े होकर के देखते थे गंगा को, तो गंगा थोड़ी दूर चली गई है वहाँ से। हाँ, बहुत दूर चली। हाँ दूर, बट क्या है कि पहले एक भी ब्रिज नहीं होता था, बहुत सारे ब्रिजेज हो गए। सो आई फील दैट द वे कुछ ऐसा प्रोग्रेस हुआ है बिहार में, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हो गया, पटना सिटी, पटना जो मेन शहर है उसमें ट्रैफिक बेहतर लग रहा है मुझे। सो बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं बिहार में। तो एक्चुअली आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड जब मैं गया था। अभी फिर से इच्छा है कि मैं जाऊँ, लोगों को कन्विंस कर रहा हूँ कि वहाँ चला जाऊँ किसी तरह। जी, वोटिंग हो चुकी है, कुछ इच्छा कि कौन बनेगा CM? सर मुझे ना उतना पता नहीं है एक्चुअली फ़िलहाल बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में, जितना मुझे पता होना चाहिए। ये अक्सर जब फिल्म रिलीज़ पर होती है तो ऐसी हालत होती है डायरेक्टर की। सो मेरी ऐसी कोई बहुत क्लियर कट कुछ भावना पॉलिटिकली फ़िलहाल बिहार को लेके नहीं है। पर आपका CM कैसा होगा? मेरा CM मेरे जैसे पर अगले महीने इम्तियाज़ की भी फिल्म रिलीज़ हो रही है, आप लोगों को पता है, तो उसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहे हैं, और एंड उसके कारण फिर भी वो आप आए, सो आई एम रियली थैंकफुल। नहीं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू थैंक यू। CM should be approachable, I think should be accessible, and हर आदमी आजकल के युग में ये चाहता है कि हमारे जो नेता हों वो हमारी तरह हों एक्चुअली, इस तरह से कि हम उनसे बात कर सकें जैसे हम सोचते हैं वैसे वो सोच ऑनेस्ट सकें। फीलिंग वाली बात है। बहुत सारी चीज़ें हमें लगती है ना कि ऐसा क्यों है यार देश में, तो उसे भी वैसे ही लगे। इम्तियाज़ जी, हाँ, ये पर्सनल राय आपकी जानना चाहूँगी कि लोग आते हैं यहाँ पर, कई सिटीज़ से आते हैं, लेकिन बिहार के लोगों को टारगेट किया जाता है पॉलिटिशियंस के, जब ऐसा नहीं है, सिर्फ बिहार के है। लोगों को टारगेट नहीं किया जाता है, बिहार और यूपी के लोगों को। और कुछ सालों पहले साउथ इंडियंस को भी बहुत टारगेट किया जाता था। सो इट्स नॉट लाइक, सो इट्स ऐसा नहीं है कि ये जो है ये सिर्फ बिहारियों के लिए है, मगर जो देखने वाली बात ये है कि आप लोग खुद भी देख लो मीडिया में कितने सारे लोग हैं जो बिहार से आते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। सो आई थिंक वो जो लोग हैं जो बिहार से आए मेरी तरह और अब बाहर हैं बिहार से, कहीं भी हों दुनिया में, उनके लिए और भी ज़्यादा रेलेवेंट है ये फिल्म।
नीतू को कितना प्यार मिला सर, देखिए ना, बिहार से। हम सब बिहार से हैं असली में, जितने कास्ट एंड क्रू आपको कितना मिला? इम्तियाज जी को? सो इम्तियाज हैज बीन अ लीडर फ्रॉम बिहार बेसिकली, हमारे से पहले जाके बहुत अच्छा किया, तो वी आर लॉट ऑफ पीपल कमिंग एंड वी आर ट्राइंग टू डू बेस्ट। आप रीजन क्या मानते हैं सर? किसका? मतलब जिस चीज़ का ये होता है, जो चीज़ें पॉलिटिशियन जैसे मतलब अलग सिटी से जो आए हुए लोगों को, आप रीजन क्या मानते हैं कि पॉलिटिशियंस क्यों मना करते हैं उनको आने से? और क्यों मना करते हैं? ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं, और मैं जो फिल्म इंडस्ट्री का आदमी हूँ, तो मुझे मेरी समझ भी इनकम्प्लीट ही होगी। पॉलिटिकल मोटिवेशंस होते हैं, आप उस तरह से चीज़ों को अपनी पॉलिटिकल एक सिद्धांत बनाते हैं कि ऐसा मैं करूँगा तो फिर शायद बेहतर होगा मेरा पॉलिटिकल करियर। या प्लीज अलाउ मी टू आस्क यू, ऑल ऑफ योर फिल्म फ्रेटर्निटी, और उस पर कई फिल्में भी बनी इस टॉपिक पे, द डांस बार्स इन मुंबई विल बी रीओपनिंग। अच्छा जी, हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया फैसला है, क्या विचार हैं आपके इस पर? सी आई कांट डांस बार्स ओपनिंग इन बॉम्बे, मतलब आई फील पॉजिटिवली अबाउट इट। मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं जो अपनी दे अर्न देयर लाइवलीहुड आउट ऑफ समथिंग, सो कोई भी चीज़ जो लाइवलीहुड दे रही है लोगों को, वो बंद हो जाती है तो एक तरह से बुरा लगता है। तो ये, हालांकि मुझे पता है कि ये कंट्रोवर्शियल चीज़ है डांस बार्स, बट मुझे लग रहा है कि एक साधन जो लोगों का बंद हो गया तो वापस खुल जाएगा, मैं तो इस बारे में खुशी हो रही है। और कई कहते हैं कि क्राइम बढ़ता है इससे। वेल, क्राइम की वजह ये नहीं होती, क्राइम कम भी क्या सर एजुकेशन को अंदर का क्राइम नहीं, बस यही, मतलब मुझे लगता नहीं है कि क्राइम इसकी वजह से, पता नहीं यार, मैं एक्चुअली एनालिस्ट हूँ नहीं, मैं कोई उस तरह से रिसर्च नहीं किया। नहीं, मैं अच्छा मैं चलूँ? हाँ, I think मैं निकलता हूँ। हाँ, ऑल द बेस्ट। और आप लोग सब मीडिया में हैं, प्लीज ट्राई टू प्रमोट दिस फिल्म एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच। Yes, very happy to see all of you. Thanks. All the best. We see you for your movie also. Yes. I was just dropping outside. You carry on with it. Bye. Thanks, Simi. आशुतोष सर, many congratulations, काफी बातचीत हो रही है। आप प्रश्न का जवाब दे रही थी डांस बार के ऊपर कि मतलब See, I think इम्तियाज़ सही बोल रहे थे कि हाँ, इम्तियाज़ ने जैसा पॉजिटिव कहा, आई थिंक कोर्ट ने डिसाइड किया तो अच्छा ही डिसाइड किया होगा, सही डिसाइड किया होगा, बिकॉज आई ऑल्सो एग्री कि बहुत सारे लोगों को काम मिलता है, और जब आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं देखते हैं ये सब बहुत ही आम बात है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जो बहुत सारी लड़कियाँ थी जो करती थी डांस, एंड नोबडी इज़ फोर्सिंग देम टू डू ऑल्सो, तो एक एम्प्लॉयमेंट तो मिलता ही है। सो आई थिंक वी शुड जस्ट गो अहेड एंड बड़े पैमाने पे सोच के, थॉट को बड़ा रख के ये सोचना चाहिए कि लोगों को काम मिलता है। हाँ, क्राइम बढ़ता है इससे, ऐसा आपको लगता है कि? ऐसा मैं नहीं मतलब एनालाइज नहीं कर सकती हूँ, लेकिन क्राइम को कंट्रोल करते हुए अगर हम इसको कोई भी चीज़ को रखें और एम्प्लॉयमेंट हो सके तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि पूरी टीम ने बहुत मेहनत करके ये फिल्म बनाई है। आई रियली वांट कि आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो उसको प्रमोट करें। हम लोग बिहार की पहली ऐसी फिल्म है जो इस सब्जेक्ट पे बनी है, और नीतू ने अपने मतलब इतनी अच्छी फिल्म हुई कि बिहार को लेके आई है, और नितिन आप लोग लेके आए हैं। मैं आपको एक बात बता दें, हमारी पहली प्रोडक्शन है, हमारे प्रोडक्शन हाउस का नाम है चंपारण टॉकीज़। नितिन ने इस फिल्म को 3-4 साल लिखा है, फिर 2-3 साल से ये फिल्म फाइट में है रिलीज़ के। पंकज झा जो बहुत ही स्टैब्लिश और इतने अच्छे एक्टर हैं, हमारा साथ दिया। क्रांति इज़ द न्यू गाय हियर। आरती पुरी इज़ डन ग्रेट जॉब। म्यूजिक डायरेक्टर ओडिया आशुतोष सर हैं, दीपक है, अर्चित सर है। एवरीबडी इज़ डूइंग वेरी वेल इन देयर ओन फील्ड्स, लेकिन इकट्ठा होके एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश है। आशीष विद्यार्थी ऑफकोर्स कोशिश है। तो आई थिंक जो बहुत बड़ी फिल्में स्क्रिप्ट के कारण ख़राब हो जाती हैं, वो शायद हम लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है कि हम छोटी फिल्में अच्छी स्क्रिप्ट लेकर आएँ। तो ये एक अच्छी स्टार्टिंग है, एंड आई थिंक वी आर ऑल ट्राइंग टू डू द बेस्ट। के माध्यम से मैसेज तो देते हैं, लेकिन एजुकेशन कितना मायने रखता है, क्योंकि
एजुकेशन में कुछ भी नहीं हो सकता अगर देखा जाए तो। सी देखिए, हम लोग ये जितने लोग खड़े हैं सब बहुत ही वेल एजुकेटेड हैं और बिहार से आते हैं। आप लोगों के नहीं, मैं यहीं से शुरू करती हूँ। एजुकेशन की बात जहाँ कर रहे हैं, हम लोग सब वेरी वेल एजुकेटेड, और हम ये फिल्म बना रहे हैं ये दिखाने की कि बिहार से लोग वेरी वेल एजुकेटेड, उनका एक मोटिवेशन है, एक रेवोल्यूशन है, और रेवोल्यूशन ओनली नॉट टुवर्ड्स अ फिल्म मेकिंग। फिल्म हमेशा एक सोसाइटी की छवि होती है, एक परछाई होता है, एक मिरर होता है। तो जो मिरर वहाँ से ला के हमने शायद भोजपुरी फिल्मों में बिहार की एक छवि देखी है, या बड़ी हिंदी फिल्मों में, बड़ी हिंदी फिल्मों में बिहार की एक छवि देखी है जो हमेशा नेगेटिव और ख़राब दिखाया जाता है, उसको हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे आप लोग बिहार गए नहीं होंगे, लेकिन जो बिहार के बारे में सुना है उससे छवि आपकी हमेशा ख़राब रही है। तो आई थिंक बिहार को लोग कान से देखते हैं, आँख से नहीं। एक डायलॉग भी हमारे फिल्म में, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस तरह से हम अगर एजुकेट किया जाए, सिर्फ किताबों से नहीं, फिल्मों के द्वारा भी एजुकेट किया जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हम सारे एजुकेटेड बिहार से आते हैं वो करने की कोशिश करें। मतलब ये फिल्म नहीं है, मतलब ये सिर्फ फिल्म नहीं है कि मतलब बिहार के सब्जेक्ट पे हम कोई फिल्म बना रहे हैं। पूरा मिरर है बिहार की जो स्थिति है, वहाँ की जो बेरोजगारी है। अगर आप जाके देखोगे आपको लगेगा कि बिल्कुल ये फिल्म बिल्कुल मिरर है उसका। सिनेमा के नाम पे चलो एक एंटरटेनमेंट है, लोग देखते हैं, फिल्म देखते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन जब आप फिल्म देखोगे क्यों इम्तियाज आया, देखा, सबको जो भी देखा है पहली बार में लगा कि बिहार के मुद्दे पे इतनी बेहतर फिल्म, हिंदी फिल्म आज तक कोई नहीं बनी है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे। थैंक यू सो मच एवरीवन।